Hello class 3rd students. So today we will read about chapter number 8 of your Living English book, and the name of the chapter is Animals in Danger. Okay. So first of all we will see what are the endangered animals, why they are called endangered animals, and I will list out some of the endangered animals that we found in India. Okay. So first of all, endangered animals are basically that are in risk, and there those animals whose population is इंक्रीजिंग डे बाय डे. ओके, मतलब जो रिस्क में, जो खतरे में, और जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट करने की कगार पे. ओके, दोज आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल्स. So there are some endangered animals, as you can see, that we found in India. Okay, so I will name one by one. First one is snow leopard. Okay, second one is Indian rhinoceros. Third one is ghadial. Fourth one is Bengal tiger. This is great Indian bustard, and this is Asiatic lion, Indian elephant, olive ridley sea turtle, lion-tailed macaw, Nilgiri tahr, and last one the great Indian hornbill. Okay, so these are the animals that are in risk. ये सारे animals हैं जो risk में हैं और जिनकी population धीरे धीरे कम हो रही है. Okay, so I will in this chapter I will discuss 4 of these animals which are in risk and which are endangered animals. Okay, so first of all we will टॉक अबाउट द एशियाटिक लायन. ओके, सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? एशियाटिक लायन के बारे में. सो एशियाटिक लायन लुक लाइक दिस, एज यू कैन सी इन द पिक्चर. द एशियाटिक लायन इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट सेंचुरी इन गुजरात. Lions live in family groups called prides. Okay, so these Asiatic lion are basically they live in the Gir forest sanctuary in Gujarat. Okay, तो ये कहाँ पाए जाते हैं आपके? मेनली गिर फॉरेस्ट सेंचुरी में, जो कि कहाँ पे? गुजरात में. ओके, लायंस लिव इन फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड्स. ओके, सो लाइकवाइज यू हैव अ फैमिली, जैसे आपकी भी फैमिली होती है वैसी लायंस की भी एक फैमिली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्राइड्स. ओके, एज आपने कलेक्टिव नाउन में भी पढ़ा होगा, दैट ग्रुप ऑफ फैमिली, ग्रुप ऑफ लायंस आर कॉल्ड प्राइड्स. ओके, a pride usually has 2 or 3 males, a dozen or so females and their cubs. Okay, so mainly जो लायंस की फैमिली होती है, जो प्राइड होता है, ग्रुप ऑफ लायंस, उसमें क्या होता है? 2 और 3 फीमेल्स होते हैं, 2 और 3 मेल्स होते हैं, मेल लायंस होते हैं, अ डजन और सो फीमेल्स, और बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, और उनके कब्स होते हैं. कब्स आर बेसिकली द बेबीज ऑफ लायंस. ओके, Lions are large animals who usually prey upon smaller animals in the jungle. Okay, as you already know, lions vegetables नहीं खाते, they always eat flesh of the animals, or they always eat meat of the other animals. Okay, so what they do, they prey upon smaller animals in the jungle. Okay, so jungle में जो smaller animals होते हैं उनका वो क्या करते हैं? hunt करते हैं, and they kill those animals for their food. Okay, वो उन्हें मार के खा जाते हैं. Their claws and teeth are very sharp and powerful. So lions, Asiatic lions के जो claws होते हैं, claws means पंजे जो होते हैं, और उनके teeth होते हैं, they are very powerful and sharp. तभी तो वो उनको help करते हैं कि वो सारे animals को, smaller animals को hunt कर सके. Okay, the coats of lions are yellowish brown. So what is the color of the coat of the lion? जो कोट ऑफ द लायन, दैट मीन्स जो जिससे उनकी बॉडी कवर होती है, एज यू कैन सी इट इज इन अ येलोइश ब्राउन कलर. ओके, द मेल्स हैव अ मेन अराउंड देयर फेस. ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, मेन इज कॉल्ड दिस hairs, as you can see it is around their face. Okay, that hairs that are grown around the face of the lion, that is called mane. जिसके आप देख लो ना, चेहरे के आसपास सारे जो hairs हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? mane कहते हैं. ओके, they can grow to a height of 3.5 feet and a length of about 9.5 feet. Okay, so their height basically goes up to 3.5 feet and their length can be about 9.5 feet. They can weigh up to 190 kilograms. Okay, so इनका weight कितना हो सकता है? 190 kg तक हो सकता है. Next is
Yes, I have some pictures. As you can see, this is a Gir forest sanctuary, and you can see there are some Asiatic lions also in the sanctuary. So sanctuary basically, students, are those forests and those place where we protect these animals, जहाँ पे हम endangered animals को protect करते, that are called sanctuary. Okay. फीमेल्स आर अ लिटिल स्मॉलर बट दे आर द मेन हंटर्स. ओके, जो फीमेल्स लायन होती हैं, फीमेल्स एशियटिक लायंस, दे आर अ लिटिल स्मॉलर. वो मेल एशियटिक लायन से थोड़ी छोटी होती है, बट दे आर द मेन हंटर्स. बट वही मेन हंटर्स होती हैं, वही मेन हंट करती है टू फीड देयर कब्स. ओके, उनके बेबीज को फीड करने के लिए. मेल्स हैव अ लाउड एंड पावरफुल रोर टू स्केयर अवे एनीवन हु एंटर्स देयर टेरिटरी. ओके, सो जो मेल्स होते हैं उनकी एक लाउड एंड पावरफुल रोर होती है. रोर मीन्स दहाड़. ओके, ताकि वो जो बाकी एनिमल्स को डरा देते ताकि वो उनकी टेरिटरी में ना आ सके. ओके, लाइकवाइज योर फैमिली हैज़ अ हाउस. तो जो एनिमल्स होते हैं, जो एशियटिक लायंस होते हैं, उनकी भी एक टेरिटरी होती है, बाउंड्री होती है, उनका एक प्लेस होता है. ओके, तो मेल लायन क्या करता है, उन्हें डरा देता है बाकी एनिमल्स को ताकि वो उनकी टेरिटरी में ना आ सके. There was a time when the number of the Asiatic lion had come down to only 18. They were hunted by poachers who killed them for their skin. After a lot of effort to save them, there are now about 600 lions in the Gir forest. Okay, so पहले जो टाइम पे कितने थे, 18. There are only 18 Asiatic lions. Okay, धीरे धीरे जो पहले Asiatic lions की पॉपुलेशन थी वो कितने पे आ गई थी, ओनली 18. सिर्फ 18 बचे थे Asiatic lions. Now why their population dropped down? Because they were hunted by poachers. क्योंकि उनका जो शिकार करता था वो पोचर्स करते थे. पोचर्स आर बेसिकली बेटा those peoples who kill the animals for their need. जैसे आपने देखा होगा वन हॉर्न राइनोसोरस का हॉर्न लेने के लिए पोचर्स किल कर देते. लोग इलीगली जो किल करते हैं, हंट करते हैं एनिमल्स को विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, दोज हु आर कॉल्ड पोचर्स. ओके, जो उनकी स्किन ले लेते हैं, ओके, उन्हें मार देते हैं. सो एशियटिक लायंस को पोचर्स जो थे वो किल करते थे ताकि उनकी स्किन ले सके. ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट टू सेव देम, देयर आर नाउ अबाउट 600 लायंस इन द गिर फॉरेस्ट. ओके, तो क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि हम इन एशियटिक लायंस को सेव करेंगे, उन्हें बचाएंगे. और अब गिर फॉरेस्ट में कितने एशियटिक लायंस हैं, नाउ दे आर अबाउट 600 लायंस. ओके, next we will read about the great Indian hornbill. Okay, so the next endangered animal is the great Indian hornbill. The great Indian hornbill is found in Kerala and the Himalayan foothills, especially in northeast India. Okay, so where we found this great Indian hornbill, we found it in केरला. ओके, हमें कहाँ मिलती है, केरला में मिलती है. एंड द हिमालयन फुट हिल्स, जो हिमालयंस होते हैं उनके नीचे, जैसे फुट हिल्स आर बेसिकली, फुट हिल्स आर योर बेटा लो हिल्स एट द बेस ऑफ अ माउंटेन. जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती है ना, दैट आर कॉल्ड फुट हिल्स. ओके, स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. तो हमें कहाँ मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलते हैं. Hornbill are large birds with black and white feathers and a big yellow beak. Okay, as you can see, hornbills have a black and white feathers. इनकी black and white feathers होते हैं and they have a big yellow beak. As you can see, their beaks means चोंच. Okay, their beak is very big and it is yellow in color. Okay, next is they are called hornbills because their large bills or beaks are curved like a horn. Okay, तो इन्हें hornbill क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनकी beak होती है, as you can see, वो कर्व शेप में होती है, वो ऐसे कर्व्ड होती है. ओके, मुड़ी हुई होती है और ये हॉर्न की तरह दिखती है. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड हॉर्नबिल्स. ओके, तभी इनका नाम हॉर्नबिल्स रखा गया है. मेल हॉर्नबिल्स हैव अ हैट शेप्ड ग्रोथ ऑन देयर हेड. ओके, सो दिस इज मेल हॉर्नबिल. ये मेल हॉर्नबिल है और एज यू कैन सी देयर इज अ हैट शेप्ड ग्रोथ ऑन देयर हेड्स. ओके, यहाँ पे देखो ऐसे लग रहा है जैसे इसने हैट पहनी हुई है. ओके,
Hornbills eat fruits such as figs but also hunt insects and lizards. Okay, so hornbills क्या खाते हैं? Hornbills एक fruit खाते हैं. As you can see, this is the picture of this fruit named figs. इसे क्या बोलते हैं? Figs. And they also hunt insects and lizards. और ये insects और lizards भी खाते हैं. Next is they are social birds who love to travel in pairs. Hornbills face two kinds of danger. The first is that the forests where they live are being cut down or destroyed. The second is that they are hunted by many people for their beaks. Okay, so they are basically the social birds. ये क्या करती है? Social, मतलब ये बाकी birds से interact करती हैं and they always love to travel in pairs. ये हमेशा अकेले नहीं travel करती है. They always travel in pairs, मतलब दो एक साथ travel करते हैं. हॉर्नबिल्स फेस टू काइंड्स ऑफ डेंजर. तो हॉर्नबिल्स के लिए देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेंजर. इनके लिए दो चीज़ें बहुत डेंजरस होती है. फर्स्ट वन इज द फॉरेस्ट वेयर दे लिव आर बीइंग कट डाउन और डिस्ट्रॉयड. फर्स्ट क्या है? जहाँ ये फॉरेस्ट में रहती हैं, जहाँ इनका घर है, दे आर कम्प्लीटली कट डाउन और डिस्ट्रॉयड. अब हम आपको पता ही है, एज यू नो, डिफॉरेस्टेशन होता है, हम ट्रीज कट करते हैं ना, बिकॉज ऑफ आर नीड. सो धीरे धीरे क्या हो रहा है? इनका जो फॉरेस्ट है वो भी कट डाउन हो रहा है और वो डिस्ट्रॉय हो रहा है और दे हैव नो प्लेस टू लिव. ओके, सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज, द सेकेंड डेंजर इज दैट दे आर हंटेड बाय मैनी पीपल फॉर देयर बीक्स. एज यू कैन सी, ही इज अ पोचर. ओके, पोचर मैंने आपको बताया था, हु हंट एनिमल्स इलीगली. ओके, सो ऐसे देखो, यू कैन सी इट इज़ हंटेड बाय पीपल फॉर देयर बीक्स. लोग क्या करते हैं? इसका हंट करते हैं, इसे किल करते हैं ताकि इसका बीक जो है वो ले जा सके. ओके, नेक्स्ट इज द घड़ियाल. नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द घड़ियाल. The gharials are fish-eating crocodiles that live in rivers. Okay, first of all there is a difference between घड़ियाल and crocodile. घड़ियाल जो होता है वो crocodile की ही family से होता है, but it is a bit different. Okay, so घड़ियाल्स are fish-eating crocodiles that live in rivers. एक टाइप के crocodile होते हैं जो क्या खाते हैं? Fish खाते हैं and they always live in rivers. और ये कहाँ रहते हैं? नदियों में रहते हैं. They are one of the longest crocodiles. और ये बहुत ही लंबे होते हैं. As you can see, their snout is very long and their length is also long. A male घड़ियाल can be about 20 feet long. और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लंबे हो सकते हैं? 20 feet तक. ओके, it can weigh up to 160 kilograms. और इनका वेट कितना हो सकता है? 160 kg. The घड़ियाल has a snout that helps is to catch fish. Okay, so the घड़ियाल has a snout. उनके एक snout होता है, as you can see, जिससे वो क्या करते हैं? आपने देखा होगा ना, जो क्रोकोडाइल्स होते हैं, घड़ियाल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपना माउथ, दे ओपन देयर माउथ एंड दे कैच समथिंग. ओके, कुछ हंट करने के लिए वो अपने माउथ से ही करते हैं. तो दे हैव अ बिग स्नाउट. उनकी बहुत बड़ी स्नाउट रहती है. सो इट हेल्प देम टू कैच फिश, ताकि वो मछलियों को पकड़ सके. द एंड ऑफ इट्स स्नाउट इज शेप्ड लाइक अ घड़ा और अ पॉट. ओके, सो उनका जो स्नाउट होता है उसके एंड में इट्स शेप्ड लाइक अ घड़ा और अ पॉट. वो ऐसे गोल सा होता है, लाइक अ घड़ा, जैसे आप घड़ा बोलते हैं ना, और अ पॉट की तरह. ओके, उसकी तरह शेप होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द घड़ियाल. इसकी वजह से ही इसका नाम क्या पड़ा है? घड़ियाल. Over the years, many dams and canals have been built, because of which the rivers now have less water than they had earlier. Okay, so धीरे धीरे क्या हुआ? बहुत सारे डैम्स एंड कैनाल्स बिल्ड हुए, बने. ओके, बिकॉज फॉर द डैम्स एंड कैनाल्स किससे बनते हैं? ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकें. ओके, सो बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारे डैम्स एंड कैनाल्स बने, जिसकी वजह से जो रिवर्स थी उनमें बहुत पानी कम होने लग गया. ओके, जिससे पहले के मुकाबले बहुत कम होने लग गया धीरे धीरे. नाउ दिस हैज़ पुट घड़ियाल्स इन ग्रेट डेंजर एज दे नीड वाटर एंड फिश टू सर्वाइव. ओके, सो इसकी वजह से क्या हुआ? घड़ियाल बहुत डेंजर में आ गए, बिकॉज दे लिव इन रिवर एंड दे ईट फिश. अगर रिवर में पानी ही नहीं होगा तो फिश भी नहीं होगी. एंड हाउ दे विल सर्वाइव विद देयर फूड, है ना? उन्हें अगर फूड नहीं मिलेगा तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे? सो नाउ दे हैव अ ग्रेट डेंजर. मोस्ट घड़ियाल्स आर फाउंड इन द नेशनल चंबल सेंचुरी. ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी तक घड़ियाल हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? चंबल सेंचुरी में. देयर आर ओनली अबाउट 200 to 250 घड़ियाल्स लेफ्ट इन द वाइल्ड. Okay, so they are basically 200 to 250 in numbers. The next is the Indian rhinoceros. Okay, now we will read about the Indian rhinoceros.
The Indian rhinoceros, also called the greater one-horned rhinoceros, is found in the grassland and forest of Nepal and northeast India. Okay, so where we found this great Indian, the Indian rhinoceros, we found in is called the greater one-horned rhinoceros. Okay, so this Indian rhinoceros is basically a one-horned rhinoceros. Okay, इसका सिर्फ एक horn होता है. Okay, that is why it is called one-horned rhinoceros, found in the grassland and forest of Nepal and northeast India. Okay, तो इन्हें कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है and northeast India में. In India, they are found in the Kaziranga National Park in Assam. As you already know about Kaziranga, so Kaziranga National Park, जो कि situated है असम में, it is famous for these one-horned rhinoceros. वो काजीरंगा नेशनल पार्क किस चीज़ के लिए फेमस है? one-horned rhinoceros के लिए. ओके, एंड इट इज़ इन असम. और ये कहाँ पे? असम में. Rhinos are large, strong animals with thick grey brown skin and a black horn. Okay, so rhinoceros जो होते हैं they have a thick brown skin. उनकी बहुत ही strong animal होते हैं और उनकी बहुत ही thick brown skin होती है, as you can see in a picture, and a black horn. और जो उनका horn होता है it is in black. They can grow about 6 feet tall and weigh up to 2200 kilogram. Okay, so उनकी जो हाइट होती है they can be 6 feet tall, 6 feet तक बढ़ सकते हैं, एंड उनका जो वेट होता है it can be 2200 kilogram. Okay, next is their lifespan is 35 to 40 years. और ये कितने इनकी जो एज होती है it can be 35 to 40 years तक ही जीते हैं. Okay, they eat grass and leaves. और ये क्या खाते हैं? Grass and leaves. In spite of their huge size, they are great swimmers and can run very fast. Okay, as you can see, they are very large. बहुत बड़े हैं ना, but उनके उनका साइज ह्यूज है, बट दे आर वेरी ग्रेट स्विमर्स. बट ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं. दे कैन स्विम वेरी ग्रेट एंड दे कैन रन वेरी फास्ट. और बहुत तेज दौड़ते भी हैं. They have an excellent sense of hearing and smell but have poor eyesight. Okay, so they can sense or hear something very easily. उनकी जो पावर होती है, सेंस पावर एंड हेयरिंग पावर, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसकी स्मेल की पावर है, स्मेल की पावर भी बहुत अच्छी है, बट दे हैव अ पुअर आईसाइट. लेकिन जो उनकी आईसाइट है वो बहुत वीक होती है. ओके, दे आर इंडेंजर्ड बिकॉज पोचर्स किल दैम फॉर देयर हॉर्न्स. ओके, सो ये इंडेंजर्ड क्यों है? ये खतरे में क्यों है? वाई दे आर इन रिस्क? बिकॉज जो पोचर्स होते हैं, जो इलीगली किल करते हैं, वो किस लिए किल करते हैं? हॉर्न्स की वजह से. इनके जो हॉर्न्स होते हैं इन्हें किल करके वो ले जाते हैं. After many efforts to save the Indian rhinoceros, their number has increased from 600 in 1975 to about 2200 now. Okay, so अब इनके लिए भी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स करे एंड नाउ दे आर सेव्ड. वो अभी धीरे धीरे सेव कर रहे हैं. पहले इनके जो नंबर्स थे वो 600 था एंड नाउ इट इज़ कमिंग टू 2200. अब वो धीरे धीरे बढ़ गया. ओके, सो स्टूडेंट्स, all these are your endangered animals. Okay, thank you.